Hello friends, welcome to my all friends. In this new video lecture, we are talking about that in this video, the HB estimation method. It is a cynamethemoglobin method. Okay, we know about that Sahil's method. Okay, which is already discussing about that in this BSc level. We are talking about that MSc levels study is that cynamethemoglobin method. It is very useful in that medical level also. Okay, but people are always confused in this method, so that I will talking about that most of the interesting as well as helpful information as related to that cynamethemoglobin method. So first of all, we are talking about that in this video. First of all, the HB structure. Then after one, we are talking about the Sahil's method briefly, so that you can clear out that what is a HB estimation method. Okay, principle of that cynamethemoglobin method, procedure as well as calculation. Okay, the most important part is that calculation, how calculate as well as procedure, how can they carry out the cynamethemoglobin method. Okay, तो first of all start करते हैं HB structure से. We know about that HB is a one type of the protein molecule which is a very useful for that transportation of oxygen and the carbon dioxide in the basic of the tissue level. Okay, by the help of RBC. आरबीसी के स्ट्रक्चर में हमें पाया जाता है एचबी मॉलिक्यूल, और एचबी मॉलिक्यूल के बारे में हम आज डिटेल में देखने वाले हैं. तो टॉकिंग अबाउट दैट एचबी स्ट्रक्चर, एचबी it contains that two parts, globin part as well as heme part. Okay, heme part, it is called that porphyrin ring structure. You can see that this is a porphyrin ring structure. Okay, you know about that porphyrin. Okay, this one is the porphyrin, and each one is that each nitrogen molecule of that cyclic ring structure, it is called the pyrrole ring. The four pyrrole ring, this is a four pyrrole ring attached with each other and make that porphyrin structure, and this one is that Fe molecule, so that this whole molecular structure it is called that HB. Okay, यहाँ पर Mg होता है तो उसे कहा जाता है क्लोरोफिल. ओके, तो यहाँ पर है हमारा हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन के पास उसके 3D स्ट्रक्चर में अगर जाए तो उसके पास क्या है, अल्फा चेन है, दो अल्फा चेन्स है, दो बीटा चेन्स है. ओके, तो दिस इज अ ओवरऑल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन. You can easily understand about that. First of all, one question is that alpha chain, it is what? The alpha chain is nothing, it is made up by that various types of amino acids, right? Various types of amino acids which is binds with peptide bond and make is that polypeptide chain. You can see that tetramer. Okay, 1 2 3 4 4 polypeptide chains, or heme part, it is contains that hemoglobin. First of all, you can see that alpha chain amino acids contains 140 amino acid. Okay, यहाँ पर कितने amino acids हैं, 141 amino acids which is present in that alpha chain. Beta chain contains that 146 amino acids residues. This is a basic information which is very important for that HB structure. You must know this information. Okay, starting about that briefly introduction of the Sahil's method. You can see that this is a equivalents of that Sahil's hemoglobinometer. Okay, you can see that this is a comparator. Okay, hemoglobin tube, hemoglobin pipette and stirrer. इसमें हम क्या करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्विपमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते थे, स्टरिलाइज कर देते थे. ओके, वॉश आउट कर देते थे जिससे कोई भी कंटामिनेशन ना हो. ओके, और साथ में हमारे पास क्या होता था,
स्टराइल लेंसेट होता था, तो स्टराइल लेंसेट से हम क्या करते थे, स्टराइल लेंसेट के थ्रू और स्टैंडर्डाइज मेथड के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ब्लड लिया है उस ब्लड को हम किस में डालते थे, उस ब्लड को फर्स्ट ऑफ ऑल हीमोग्लोबिन ट्यूब में हम डाले, उससे पहले सेकंड मार्क तक हम टेस्ट ट्यूब, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब है, ओके, इस टेस्ट ट्यूब में या फिर ट्यूब में हम क्या डालते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल याद करो HC मॉलिक्यूल, ओके, HCl डालते थे, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद हम क्या करते थे, पाइपेट के थ्रू, हीमोग्लोबिन पाइपेट की मदद से जो इंडेक्स फिंगर में हमने जो पंच किया है लेंसेट के थ्रू, उस लेंसेट के थ्रू हम शक करते थे, ओके, उस लेंसेट से हमने जो पंच किया है हमारी इंडेक्स फिंगर को, उस इंडेक्स फिंगर पर हम क्या रखेंगे, हमारी हीमोग्लोबिन और पाइपेट, और उसके साथ हम क्या करेंगे, उसका शकिंग करेंगे, और उसके बाद वो जो मटेरियल है यानी कि हमारा जो ब्लड सैंपल है वो हम किस में डालते थे, इस हीमोग्लोबिन ट्यूब में डालते थे, ओके। तो उसके बाद हमने क्या देखा था, तो उसके बाद कुछ रिएक्शन होती है, क्या रिएक्शन होती है, हिमेटिन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जो ब्राउनिश कलर का होता है, ओके, द ब्राउनिश कलर फॉर्मर, देन आफ्टर वन वी आर डाइल्यूटेड द सैंपल्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, ब्राउन कलर फॉर्म होगा, ओके, जस्ट मिनट में यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ, ओके, ये होगा ब्राउन कलर, ओके। जैसे ही हम उसे डाइल्यूट करेंगे, किससे डाइल्यूट करना है हमें, डिस्टिल वाटर के थ्रू, ओके, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जाएंगे हमारा जो सैंपल है उसका कलर चेंज होता जाएगा, ओके, और देन आफ्टर वन यू कैन सी दैट उसका जो कलर है वो हमारे दोनों कंपैरेटर से, यहाँ पर जो कंपैरेटर है उससे मैच हुआ जाएगा, ओके, और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं कि हमारे ब्लड में इतना hemoglobin है, तो this is called the Sahels method, and which is not a standardized method but which is very useful for that in this laboratory, okay। लैब के अंदर जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल इस HB से डील करने वाला होता है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रिंसिपल पर और इसकी प्रोसीजर जाननी बहुत ही ज़रूरी होती है, ओके। देन आफ्टर वन they will go about that cyanomethemoglobin method, but you can must understand that Sahels method, okay। So I hope you are clear about that Sahels hemoglobinometer and all are the equipments that are uses। स्टरर का यूज ये है कि हम जैसे ही ब्लड और HCl को मिक्स करने के लिए हम स्टरर का यूज करते हैं, ओके, और देन आफ्टर वन उसको डाइल्यूट करने के लिए हम डिस्टिल वाटर का यूज करेंगे, और जैसे ही हमें कंपैरेटर के जैसा ही कलर मिल जाएगा हम क्या कर लेंगे, HB एस्टिमेट कर लेंगे, ओके। But now we are talking about that cyanomethemoglobin method. First of all, talking about that heme and hematine comparison molecule, okay, you can see that heme molecule, heme is that hemoglobin and hematine यानी कि यहाँ पर जैसे ही hematine form होगा तो you can see that OH molecule is bind with Fe, okay। You know about that first of all, प्रिंसिपल से हम जाने उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि HB का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ओके, तो हमने आगे के जो स्लाइड में देखा, ओके, कि जिसमें 2 अल्फा चेन्स है, 2 बीटा चेन्स है, हीमोग्लोबिन है, हीम मॉलिक्यूल है, वहां पर ज्वाइंट हुआ है, तो 1 HB मॉलिक्यूल इट कंटेन्स दैट 4 Fe, ओके, sorry, 1 HB molecule is contains that 1 Fe molecule, but it is carried out 4 oxygen molecule, okay। एक HB molecule जो है वो क्या कर सकता है, एक ही साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है,
ओके, यानी कि वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एफिनिटी धराता है कि उसके साथ वो क्या कर सकता है, बाइंड हो सकता है। ओके, कि जैसे ही वो बाइंड होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से, तो उसके जो स्ट्रक्चरल कॉन्फॉर्मेशन में कुछ चेंजेस आने लगेंगे। ओके, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर था, पोरफायरिन रिंग थी, ओके, और हीम मॉलिक्यूल था, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज होगा और उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, वो अब टॉर्ट फॉर्म में से आर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, टॉर्ट यानी कि ऐसा फॉर्म है कि जहां पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इंफॉर्मेशन अपनी नोट्स में बनाए रखेगा। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस है ऑक्सीजन की, ओके, उसमें क्या होता है, Hb का टॉर्ट फॉर्म होता है, टॉर्ट फॉर्म। ओके, एंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो आर फॉर्म में आ जाता है। ओके, ये टॉर्ट फॉर्म जो है वो स्टेबल रहता है, किसके हिसाब से, किसके हिसाब से वो स्टेबल रहेगा, कि ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर एब्सेंट होनी चाहिए। ओके, ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होना चाहिए तो टॉर्ट फॉर्म स्टेबल रहेगा। ओके, और अगर ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे शरीर में तो वो आर स्टेट में रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि Hb का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं हो सकता। In the presence of temperature, in the presence of the pH, in the presence of that 2,3-BPGA molecule, यानी कि 2,3-biphosphoglycerate, it is a very very helpful molecule which is a stabilize the tort form of the hemoglobin. Okay, तो this is all are the factors which are affecting the Hb molecular structure. So now first of all we are talking about that this is a basic information of the टाइप्स ऑफ Hb मॉलिक्यूल। ओके, कि मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी कि कैसे Hb का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, और उस पर कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर होगा, पीएच होगी, और 2,3-BPGA मॉलिक्यूल होगा। ओके, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज अ basic information, you must know about that this information. First of all, in this topic we are talking about that first of all the principle of the cynamethemoglobin method. तो इन दिस प्रोसीजर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा कि हम ब्लड लेंगे, रिएजेंट डालेंगे, कौन सा वाला, पोटेशियम साइनाइड एंड पोटेशियम फेरिसाइनाइड, मीन्स दैट ड्रपकिन सॉल्यूशन। इन दोनों को अगर कॉम्पोजिशन में बोला जाए तो उसे कहा जाता है ड्रपकिन सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस नेम्स। ओके, आफ्टर द एडिंग द रिएजेंट, ब्लड में जो हमारे आरबीसीज है, आरबीसी में जो हमारा एचबी मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन में। ओके, आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ द मिथेमोग्लोबिन इट इज कन्वर्टेड टू दैट अनदर साइनेमिथेमोग्लोबिन। मीन्स दैट यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ आपको कि एचबी है हमारे ब्लड में, क्या है, आरबीसी है, आरबीसी में है एचबी। एचबी जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम फेरिसाइनाइड से रिएक्शन करेगा। ओके, पोटेशियम फेरिसाइनाइड यानी कि K2FeCN6। रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अवर वाइवा क्वेश्चंस। एंड पोटेशियम साइनाइड्स chemical formula is that KCN. तो राइट नाउ द फर्स्ट प्रोसीजर क्या होती है कि Hb molecules binds with potassium ferricyanide and then afterwards it converts the methemoglobin. This methemoglobin it is contains that 4-aminopterin, sorry just a minute, this methemoglobin it is
binds with potassium cyanide KCN and make the cyanomethemoglobin. ओके, तो जितना cyanomethemoglobin ज्यादा होगा उतना ही हमारे शरीर में Hb होगा. ओके, यानी कि cyanomethemoglobin जो है उसका कलर कैसा है, उसका कलर है रेड इन कलर. ओके, रेडिश कलर जितना ज्यादा होगा. ड्रपकिन सॉल्यूशन का कलर है येलो. ओके, येलो है. और ब्लड का हमारा कलर है रेड. ओके, वी नो अबाउट. लेकिन जैसे ही Hb मॉलिक्यूल पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करेगा, उससे क्या होगा, आरबीसी जो है वो हिमोलाइज हो जाएगा. हिमोलाइज यानी कि वो रप्चर हो जाएगा. ओके, और वहां से Hb मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज आउट हो जाएगा. तो Hb जो है उसका कलर फॉर्मेशन हमें दिखने को मिलेगा. ओके, और दिस Hb मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट cyanomethemoglobin. ओके, तो जितना ज्यादा कलर उतना ज्यादा Hb मॉलिक्यूल. कैसे पता चलेगा हमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से. एज अ वेवलेंथ ऑफ दैट 540 नैनोमीटर में हम क्या करेंगे, उसे मेजर करेंगे. तो दिस इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द cyanomethemoglobin मेथड. राइट, अब हम चलते हैं प्रोसीजर पर. इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए. ओके, cyanomethemoglobin method, it is a very helpful method which is an accurate method for the determination of that hemoglobin concentration by the help of colorimeter as well as spectrophotometer. You can see that first of all taking about the 3 sterile test tubes and naming the test tubes as the standard, blank and the sample one. Right, just add about that 5 ml Drupkin solution in each test tubes. We know about the Drupkin solution. Drupkin solution is a composition of that ferricyanide and potassium ferricyanide and potassium cyanide का वो क्या है, composition है. Okay, now 3 test tubes is ready for that sampling as the standard. टेस्ट ट्यूब के लिए वो क्या है, रेडी हो चुकी है. अब जस्ट हमें क्या करना है, हमारा जो सैंपल है जो हमने कलेक्ट किया है किसके थ्रू, तो हाँ, यहाँ पर आपको कलेक्शन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप ब्लड को कलेक्ट कर रहे हो, ओके, वो किसके थ्रू करना चाहिए आपको, हिपेरेनाइज्ड टेस्ट ट्यूब में करेंगे आप. ओके, तो क्या हो जाएगा कि ब्लड जो है वो क्लोट नहीं होगा. ओके, ब्लड को अनक्लॉट रखना है, यानी कि वो उसे लिक्विड फॉर्म में रखना है. हमें क्लॉट वाला ब्लड नहीं चाहिए. तो शुड बी कंटेन इन दैट हिपेरेनाइज्ड टेस्ट ट्यूब. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, तो जैसे मैंने आपको साहिस मेथड में बताया था कि लैंसेट के थ्रू हम पंच करेंगे हमारी इंडेक्स फिंगर पर, या फिर पेरिफेरल वेन से हम ले सकते हैं. ओके, तो पेरिफेरल वेन से लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड को जैसे ही हमने ले लिया, इंजेक्शन के थ्रू ले सकते हो या फिर कोई पाइपेट के थ्रू ले सकते हो. ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हिपेरेनाइज्ड टेस्ट ट्यूब में डालेंगे. ओके, तब तक हमारी जो 3 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कर लिया है, ड्रपकिन सॉल्यूशन डाल दिया है. ओके, आफ्टर दैट एडिंग हमें थोड़ा बहुत क्या करना है, हमारे जो सैंपल यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर मैं दूरी देती हूँ सो आपको पता चले कि मैं क्या करने वाली हूँ. ओके, तो ये हमारी हिपेरेनाइज्ड टेस्ट ट्यूब है. ओके, मान लीजिए कि ये हिपेरेनाइज्ड टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने क्या किया है, हमारा ब्लड कलेक्ट किया है. ओके, इस ब्लड को हमें क्या करना है, थोड़ी बहुत हम यहाँ पर क्या करना है, उसे
थोड़ा बहुत शेकिंग करना है कि जिसके थ्रू क्या हो जाए, सारा जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनाइजेशन में आ जाए। ओके, ऐसा ना हो कि जो भी आरबीसी है, आरबीसी का आप जानते हैं कि आरबीसी हैविंग हायर मॉलिक्यूलर वेट, तो वो क्या हो जाएगा, बॉटम में जाकर आ जाएगा। ओके, तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा बहुत शेकिंग करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, होमोजेनाइज्ड हो जाएगा। ओके, और जैसे ही वो होता है हम क्या डाल देंगे, ये सारा जो सॉल्यूशन है वन बाय वन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में हमें क्या डालना है, स्टैंडर्ड ब्लड सैंपल डालना है। हमें इसमें हमारा सैंपल ब्लड नहीं डालना है। ओके, सैंपल ब्लड जो है वो हम क्या इसमें डालेंगे, सैंपल टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में कितना HB मॉलिक्यूल है। स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में हम स्टैंडर्ड जो टेस्ट ट्यूब स्टैंडर्ड ब्लड सैंपल है वो डालेंगे। ओके, और ब्लैंक में तो कुछ भी नहीं डालना, ब्लैंक में हम कोई भी ब्लड सैंपल नहीं डालेंगे, क्योंकि ब्लैंक को हम यूज करेंगे कलरीमीटर में, फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो सेट करने के लिए। ओके, तो ये याद रखना है कि ब्लैंक में कुछ भी नहीं डालना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यू आर क्लियर अबाउट अप टू दिस? ओके, now we are adding that standard sample as well as a sample solution. Know that this is a standard sample solution. Okay, and the sample solution हमने डाल दिया है। Okay, this each test tube is ready for that colorimeter estimation. तो going about that, first of all one by one, उसके पहले हम डालेंगे ब्लैंक से, ब्लैंक में जो भी हमारा ड्रपकिन सॉल्यूशन है उसमें हम उसे किसमें डालेंगे, स्टेराइल क्यूवेट में डालेंगे, और उसके बाद उसे कलरीमीटर में estimate करेंगे। okay, you can see that this is a colorimeter. okay, this is a colorimeter diagram or also called as a photo. okay, तो हमने सेट कर दी है, वेवलेंथ जो है वो 540 नैनोमीटर है। ओके, और यहाँ पर हम ब्लैंक को ब्लैंक सैंपल को लेंगे जिससे हम जीरो सेट कर सके। ओके, आफ्टर द सेटिंग द 01, वन बाय वन हम ब्लैंक की, सैंपल की और स्टैंडर्ड की हम ऑप्टिकल डेंसिटी ढूंढ लेंगे। ओके, तो दिस इज अ क्लियर अबाउट दैट प्रोसीजर प्रिंसिपल एज वेल एज व्हाट अबाउट द हेल्पफुलनेस ऑफ द साइनेमिथेमोग्लोबिन मेथड। ओके, हाँ, मैं आपको ये कहना भूल गई कि ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज मेथड है, कि इसमें कोई भी भूल नहीं होती। हम साइंस मेथड में देखे थे तो उसमें क्या हो जाता है कि आप जो भी सैंपल सॉल्यूशन डालते हैं तो उसमें HCl की अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो भी हिमेटिन ज़्यादा बनेगा और आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ सकता है। ओके, लेकिन इस मेथड के थ्रू आप जो भी प्रोसीजर करेंगे, जो अगर आप वन बाय वन और एक्यूरेट करते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे साइनेमिथेमोग्लोबिन मेथड को। तो ये दिस इज अ चार्ट ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ HB मॉलिक्यूल। फर्स्ट हमने क्या लिया था, ब्लैंक टेस्ट ट्यूब ली थी, उसमें हमने कोई भी स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऐड नहीं किया था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डैश। ओके, उसमें हमने डाला था ड्रपकिन सॉल्यूशन 5 ml। ओके, तो हमने लिख दिया 5 ml। ओके, यहाँ पर है एक न्यू फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है, व्हाट अबाउट द डाइल्यूशन फैक्टर। यस, ऑप्टिकल डेंसिटी तो आप कब की जो BSc लेवल से आप ढूंढ के आए रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट द डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, तो डाइल्यूशन फैक्टर की वन फॉर्मूला है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डाइल्यूशन फैक्टर अगर आपको ढूंढना है तो आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड वॉल्यूम को ड्रपकिन सॉल्यूशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ड्रपकिन सॉल्यूशन, जिससे हमें क्या मिलेगा, डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, तो यहां पर तो हमने कोई भी स्टैंडर्ड वॉल्यूम नहीं लिया, तो 0/5 यानी कि 0। ओके, नाउ
वी आर एडिंग सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल में हमने कितना स्टैंडर्ड वॉल्यूम लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। 20 माइक्रोलीटर हम स्टैंडर्ड वॉल्यूम अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिया है 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल। स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पर सैंपल टेस्ट ट्यूब है, लेकिन यहाँ पर क्या हमने लिखा है स्टैंडर्ड वॉल्यूम, या फिर कोई भी वॉल्यूम आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको मिटा देती हूँ तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो जो भी हम वॉल्यूम लेंगे, सैंपल में कितना वॉल्यूम लेना है हमें 20 माइक्रोलीटर। ओके, 5 ml हमने ड्रॉपकिन सॉल्यूशन तो ले ही लिया था सभी टेस्ट ट्यूब में। ओके, डाइल्यूशन फैक्टर कितना होगा इसका, बताओ कैसे ढूंढोगे आप, वॉल्यूम अपॉन ड्रॉपकिन सॉल्यूशन। ओके, तो 20/5 is equal to 4. This is a dilution factor. Then after one स्टैंडर्ड टेस्ट ट्यूब में भी हमें कितना लेना है, स्टैंडर्ड सैंपल 20 माइक्रोलीटर लेना है। ड्रॉपकिन सॉल्यूशन हम डालेंगे उसमें 5 ml और उससे ज्यादा हमें डाइल्यूशन फैक्टर कितना मिल जाएगा 4। ओके, तो इन दोनों का डाइल्यूशन फैक्टर तो रोशनी एक जैसा ही हुआ, ऐसा आप कह रहे होगे। ओके, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दोनों में से हमारा सैंपल सॉल्यूशन कौन सा वाला था। तो यू नो अबाउट दैट सैंपल, यानी कि कोई भी पेशेंट का अगर आप सैंपल ले रहे हो, ओके, तो उसमें अगर HB की मात्रा जो है वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ओके, तो HB अगर जिसमें कम है तो दिस इज कॉल्ड द सैंपल सॉल्यूशन, और जिसमें स्टैंडर्डाइज, यानी कि स्टैंडर्डाइज कैसे हो सकता है, स्टैंडर्डाइज ब्लड सैंपल या फिर स्टैंडर्डाइज HB सैंपल कैसा होता है, तो उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको इतना ही याद रखना है कि एडल्ट मेल में कितना HB होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ फॉर इंफॉर्मेशन। एडल्ट मेल की बात करें 40 to 80 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर ग्राम परसेंटेज। ओके, फीमेल में कितना होता है, तो 30 to 50 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो इतना अगर होता है, अगर हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड हमने लिया है स्टैंडर्ड फीमेल, एडल्ट फीमेल का, तो 30 से 50 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन में हमें ऑप्टिकल डेंसिटी मिलती है और उसकी ग्राम पर डेसीलीटर मिलता है हमें बहुत ही कम। ओके, यानी कि मान लीजिए 10 ग्राम पर डेसीलीटर हुआ। ओके, तो उसे क्या कहा जा सकता है, एनीमिया कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर HB की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, लो है। ओके, HB की मात्रा क्या है, लो है। ऐसा भी हो सकता है कि HB की मात्रा स्टैंडर्डाइज जो वैल्यू है उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स है कि अगर कोई जो भी सैंपल आप ले रहे हो वो पेशेंट्स या फिर वो पर्सन बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर रह रहा हो, यानी कि पर्वत वाले विस्तार पर वो रह रहा हो, तो उसका HB एस्टिमेशन क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि वहां पर उस एरिया में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, सो HB जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ओके, तो इसके थ्रू, इस सैंपल की इस सारे चार्ट के थ्रू आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो कि हमें अगर ये चार्ट दिया जाए और आपको बताया जाए कि इसमें से जो सैंपल वाला जो पेशेंट है उसे एनीमिया है या फिर हाइपर हीमोग्लोबिनेमिया है। ओके, तो ये दिस इज अ very helpful for that standardize the estimation of the HB molecule. I hope you are clear about that cynamethemoglobin method. Just recall about all the information. मैंने ऐसा ट्राई किया है कि आपको साइंस मेथड में भी थोड़ा बहुत ले जाओ और उसके बाद आपको शॉर्टली साइनेमिथेमोग्लोबिन मेथड के बारे में बताओ। ओके,
इसमें आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग दिस वीडियो।